guys, हमने with reference to structuralism, we have learned up till now the origin. In origin, we have talked about the basic concepts of Karl Marx with reference to the existing global political economy and international relations. Okay, what were the concepts which are still having relevance to the international relations? And those concepts which were given by Karl Marx, they are still having their relevance to structuralism. Remember one thing, structuralism, as I have already told you, is called neo-Marxism, scientific Marxism. So it is not basically Marxism, it is neo-Marxism or scientific Marxism. So we have talked about the assumptions of structuralism, and then we have talked about the different variations within structuralism. In variations, we have talked about the dependency theory. And in addition to dependency theory, we have also talked about the world system theory by Immanuel Wallerstein. And then there was the third variant of structuralism, that is known as the structural model of imperialism by John Galton. So these were the things that we have learned up till now with reference to the structuralism. And now today we are going to talk about the themes. We are going to talk about the themes of structuralism. With reference to the themes of structuralism, the very first thing which comes, as usually we have seen in the previous series as well, that is the state and power. State and power का भी आज हमने थीम डिस्कस करना है और उसको अभी हम देखते हैं. अच्छा, remember one thing, why we people are talking about themes? Because if we want to apply any variation or any theory, then we have to have the basic knowledge according to that theory, how they perceive the role of different institutions, the role of different entities in international relations. So in international relations के अंदर अगर we want to apply, for instance, structural theory, then we have to have a better idea how they conceive the role of state and how they perceive that power is being exerted by one entity against the other. Remember one thing, now we are going to talk about the state and power. Remember one thing, with reference to liberalism and realism, there used to be a greater similarity when they perceived the role of state in international relations. They were just having a difference of opinion when it comes to a matter of sovereignty. Liberals, they used to believe that state is basically a neutral arbiter, it is basically an autonomous entity. But when it comes to a matter of state in realism, state is basically a sovereign entity. So यहाँ पे there was a difference. But when we are going to talk about structuralism की जब हम बात करते हैं, they do acknowledge that state is an important actor in international relations because they believe that the whole world is basically being divided politically, and the whole world is basically having its political division in the shape of states. दुनिया के अंदर आपको पता है 193 यूनाइटेड नेशन मॉडल स्टेट यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं, और भी जो नॉन यूएन मेंबर कंट्रीज भी हैं दुनिया के अंदर. तो they acknowledge, they are not going to reject the role of state, लेकिन how they perceive the role of state in international relations, ये थोड़ा सा different point of view है, यहाँ पे अभी हम देखेंगे. लेकिन यू हैव टू हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरीके से वो इस चीज को देख रहे हैं. वो ये कहते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टेट फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट. ये कौन है? वासिफ, माइक बंद करो बेटा अपना. वासिफ, माइक बंद कर दो. अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि विद रेफरेंस टू स्टेट, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर वो ये स्टेट को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस नहीं लेते, जैसा कि रियलिस्ट ने लिया था, जैसा कि लिबरल्स ने बाद में ले लिया. लेकिन इनके लिए फॉर देम द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशंस इज सोशल क्लास. सोशल क्लासेस, हाउ सोशल क्लासेस दे आर बीइंग मेड, किस तरीके से सोशल क्लासेस को बनाया जाता है, and how economy is being organized and under what conditions economy is being organized. हमने लास्ट क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ ली थी कि इकोनॉमी इज द मटेरियल बेस ऑफ सोसाइटी, यानी अगर सोसाइटी इज बीइंग लेड, कहीं भी दुनिया में सोसाइटी लेड होती है तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो इकोनॉमी है. और इकोनॉमी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर यानी सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करती है इन द शेप ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, इन द शेप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन द शेप ऑफ रिचुअल्स एंड नॉर्म्स, इन द शेप्स ऑफ आइडियोलॉजी वगैरह वगैरह.
तो वो ही ये सेम केस यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके लिए फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट स्टेट इज नॉट बेसिकली यूनिट ऑफ एनालिसिस, स्टेट यूनिट ऑफ एनालिसिस नहीं है। क्या है इनके लिए? सोशल क्लास यूनिट ऑफ एनालिसिस है, और सोशल क्लास के साथ हाउ इकोनॉमी इज बेसिकली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इकोनॉमी इज बेसिकली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अब यहाँ पे when structuralists they are going to talk about the role of a state in international relations, there are two differences of opinion within structuralism. One is called the classics, the other is called the contemporary structuralists. Classical structuralists जिसके अंदर कार्ल मार्क्स को अगर अपने डालना है तो डाल लें, और इसके बाद के जो इनिशियल्स थे structuralists, they don't see that state जो है it is having a certain sense of autonomy. वो ये क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि state is basically the स्टेट जो है फॉर क्लासिक, मैंने जैसे कि बताया कि देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज, एक है क्लासिक, दूसरा है कंटेम्परेरी। क्लासिक्स ये कहते हैं जो स्टेट है वो इट इज बेसिकली अ कोर्सिव मींस, ये एक कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है विच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इट इज वायलेंट इंस्टीट्यूशन। एंड दिस कोर्सिव अपरेटस जो बनाया गया है, ये जो वायलेंट अपरेटस विच इज बेसिकली वर्किंग दिस कोर्सिव वायलेंट एंड दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं दे आर वर्किंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सोशल क्लासेस। सर्टेन सोशल क्लासेस के ये जो मामलात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्लास एग्जिस्ट कर रही है। और सो मच सो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि स्टेट इज बेसिकली अ कमेटी ऑफ बोर्जी क्लास। उर्दू के अंदर एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है जिसको हम कहते हैं अंजुम ताशे बामी। कुछ लोगों ने अपने मफादात के प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई हुई है, ये सब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती। तो ये है बेसिकली। और तो कुछ लोग यहाँ तक इसको कहते हैं क्लासिक्स के अंदर, क्लासिक्स में कहते हैं ये कोर्सिव है, ये वायलेंट है, ये रिप्रेसिव है। कुछ लोग कहते हैं ये इट्स कमेटी ऑफ बोर्जी क्लास, अंजुम ताशे बामी बनाई हुई है रिच क्लास ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लोगों को फायदा नहीं देती, सिर्फ रिच क्लास को देती है। और कुछ लोग तो कहते हैं क्लासिक्स के अंदर कि इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये रिच क्लास ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो वो ये चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया। तो क्लासिक्स जो है, क्लासिक स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं, they see that state is basically a violent, state is basically a repressive instrument, state is basically a coercive instrument, state coercive apparatus रखती है, state is basically the committee of bourgeois class, state is basically an instrument of exploitation। तो वहां उनके लिए state जो है वो एक instrument of exploitation है। यहां तक जो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें, अगर कोई बात। ये स्ट्रक्चरलिस्ट के अंदर क्लासिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं कंटेम्परेरी के ऊपर। अगर कोई बात करना चाह रहे हैं बेटा, कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो बताइए मुझे। सर जी जी सर फिर इसका अल्टरनेटिव क्या देते हैं स्टेट का फिर स्ट्रक्चरलिज्म, अगर वो इस पे क्रिटिक करते हैं तो? अभी आप पढ़ेंगे ना कि स्टेट किस तरीके से वो है सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या अल्टरनेटिव है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। दूसरा है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी कैसे है? कंटेम्परेरी जो है वो ये कहते हैं नहीं, स्टेट इज नॉट ऑलवेज an instrument of exploitation, state is not always violent and repressive apparatus. Some of the times what you see a state is going to have a certain degree of autonomy vis-a-vis certain existing dominating social classes. क्या रखती है? It is having a degree of autonomy. Degree of autonomy रखती है against what? क्या है मतलब कि if a state is working, state is going to implement some policies, और जब वो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है तो अल्टीमेटली दोस पॉलिसीज कम इन कॉन्फ्लिक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग रिच क्लास। तो व्हाट डज इट मीन? इट का मतलब ये नहीं है कि रिच क्लास इज ऑलवेज यूजिंग स्टेट, हमेशा यूज करती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो यहाँ जो कंटेम्परेरी हैं दे बिलीव, वो ये कहते हैं, जो रिसेंट जो वर्जन है स्ट्रक्चरलिज्म का, वो ये कहते हैं कि ये जो आपकी जो स्टेट है ये इन डोमिनेटिंग सोशल क्लासेस के खिलाफ भी इज हैविंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ, इफ अ स्टेट इज गोइंग टू मेक, अगर स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है, देन स्टेट इज विलिंग टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहती है। एंड यू नो स्टेट कैन नॉट वर्क अंटिल अनलेस स्टेट इज नॉट हैविंग रिसोर्सेज, जब तक उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। एंड रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम व्हाट? सोर्सेज कम्स
थ्रू टू मीन्स। आपको पता है स्टेट की वर्किंग के पीछे दो किस्म के सोर्सेज होते हैं, मनी की शक्ल में बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की शक्ल में, कि एक या तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चीजें कमाती है, एक्सपोर्ट से, और या लोगों के खिलाफ टैक्स लगाती है। तो टैक्स किसके खिलाफ? गरीब बंदे के ऊपर क्या टैक्स लगेगा? अमीर आदमी के ऊपर जब वो टैक्स लगाती है तो अल्टीमेटली वो स्टेट जो है वो अपने अपरेटस को यूज करके गेट मनी फ्रॉम व्हाट यू कॉल रिच क्लास। तो क्या हो रहा है, रिच क्लास तो कभी भी टैक्स नहीं देना चाहती, वो टैक्स देना ही नहीं चाहती होती, लेकिन स्टेट जब कोई पॉलिसी लगाना चाहती है, पॉलिसी बनाती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो रिच क्लास को भी टैक्स देने पड़ते हैं, और इस टैक्स से स्टेट टैक्स इकट्ठा करके सोसाइटी के अंदर वेलफेयर करती है। जब वेलफेयर करती है तो उससे ना सिर्फ रिच क्लास को फायदा होता है बल्कि पुअर क्लास को भी होता है। तो व्हाट डज इट मीन? ये उसी तरीका की अप्रेसिव नहीं है, ये उसी तरह की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। यहाँ पर contemporarily they believe that state is having a certain degree of autonomy against the existing dominating social classes। यहाँ पे अब फॉर इंस्टेंस अगर स्टेट इज गोइंग टू गेट डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कैसे होती है कि रिच क्लास इज नॉट विलिंग टू गिव रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, वो टैक्स नहीं देना चाहते, तो स्टेट क्या करती है? स्टेट के पास अदर अल्टरनेटिव भी हैं। स्टेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द रिच क्लास, स्टेट के पास अदर अल्टरनेटिव भी हैं। वो प्राइवेट बैंक से या नेशनल बैंक से लोन ले लेती है, उस लोन लेकर वो प्रोजेक्ट से इनिशिएट करती है और फिर बाद में उस प्रोजेक्ट से पैसा कमा के लोगों के ऊपर दोबारा लगाती है। और अगर वो यहां से भी नहीं लेती तो स्टेट के पास देयर इज एन ऑप्शन टू गो टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उनके पास जाती है एंड गेट लोन्स, और वहां से भी लोन्स लेती हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी अगेंस्ट द डोमिनेटिंग क्लास है, ये कितनी? अगर इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम मी कि सर ये दोनों के दरमियान जो ऑटोनॉमी है वो 10 में से आप कितने नंबर देंगे टू द ऑटोनॉमी, तो आई वुड बी सजेस्टिंग के इट इज जस्ट 3 आउट ऑफ 10। 10 में से 3% ऑटोनॉमी है, अदरवाइज 7% इज स्टिल इन द फेवर ऑफ द रिच क्लास, डोमिनेटिंग रिच क्लास। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप किसी मुल्क की जो इकानमी है वो बेसिकली लोकल और नेशनल के अंदर डिवाइडेड होती है, और लोकल जो है, लोकल इकानमी नेशनल इकानमी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और नेशनल जो इकानमी होती है वो इंटरनेशनल इकानमी पे डिपेंडेंट होती है। और जो जितनी भी सारी की सारी जो इकानमी है इट इज बेसिकली कैपिटलिस्ट। सो बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली, कि हो ये रहा है कि स्टेट इज ट्राइंग टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, उसके ऊपर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर लोकल इकानमी से उसको फायदा नहीं हो रहा, स्टेट लोकल लोगों से टैक्सेस रिसीव नहीं करती और उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ता है, लाइक वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दे आर नॉट गिविंग मनी टू वर्क टू स्टेट टू वर्क विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बगैर नहीं देती। देयर आर कंडीशंस, दोज कंडीशंस दे आर अगेन फॉर द फेवर ऑफ द डोमिनेटिंग एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट क्लास जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो स्टेट इज हैविंग अ कंस्ट्रेंट, स्टेट इज हैविंग सम लिमिटेशन, स्टेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्टेट इज वर्किंग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कितने परसेंट वो ऑटोनॉमी रखती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इफ ये दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू माइट डिफर के सर 3% से ज्यादा हो सकती है, ये 1% हो सकती है, लेकिन क्लासिक्स के मुताबिक तो स्टेट का कोई फायदा ही नहीं है, स्टेट तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन यहाँ पे स्टेट आपको पता है वर्क करती है तो टैक्सेस देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे देती है, लेकिन स्टेट इज नॉट गोइंग टू हैव दिस सोवरेनिटी जैसा कि रियलिस्ट के अंदर है। यहाँ पे अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है। मेरी बात समझ आई है बच्चों? ये बात मैंने क्या बोली है? हेलो, अगर जारा कुछ पूछना चाह रही थी, हाँ जारा कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं पूछना चाह रहे? अच्छा नो सर मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा ओके। तो बच्चे ये मैंने आप लोगों को बताया, आज 25 लोग हैं हमारी अभी तक की अटेंडेंस के मुताबिक। ओके गाइस, तो हमने बताया कि वो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द क्लासिक्स एंड द कंटेम्परेरी रिसेंट वर्जन्स, लेकिन क्लासिक्स उसको कहती है एक्सप्लॉयटेशन है, और जो कंटेम्परेरी या जो रिसेंट वर्जन है वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी रखती है। अब कितनी ऑटोनॉमी है इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन still we have what the idea that state is not the always an instrument of exploitation. Yes, of course it is an instrument of exploitation, but at the same time when a state is going to work it still give benefits to some other people, लोग दूसरे लोगों को ये benefits भी देती है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब आगे अंदर ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे कंसीव करते हैं द रोल ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
उसके बाद अब दो वेरिएशन के अंदर भी आके अगर आप देखते हैं कि स्टेट, मैंने आपको बताया कि स्टेट इज हैविंग सम कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कहां से आई हैं? कैपिटलिस्ट सिस्टम ने कांस्टेंट्स दी हैं लोकल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में। इसी वजह से structuralists they used to believe that capitalism by every criteria is basically a system of exploitation। ये एक्सप्लॉयटेशन है। दुनिया के अंदर जो स्टेट जो वर्क करती है, स्टेट की अगर लोकेशन कैपिटलिज्म के अंदर पेरिफेरल स्टेट है तो उसको क्या मिल रहा होगा? और अगर स्टेट की जो पोजीशन वो कैपिटलिज्म के अंदर कोर के अंदर है, देन इट वुड बी गेटिंग बेनिफिट। लेकिन याद रखिएगा कोर और पेरिफेरी की एक्सप्लॉयटेशन भी इसी पोजीशन को एक्सप्लेन करती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब यहाँ पे एक बात रखिएगा, आपको लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का भी पता है, आपको रियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का भी पता है। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ज़ैनब बेटा, आपका वो आंसर क्लियर हुआ जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे? शनिवारी सो तो नहीं गई शनिवारी, या वैसे ऑनलाइन करके भाग गई है काम करने कोई? सर वो सांस नहीं आ रहा होगा उसे। नो सर, मैं इधर ही हूँ, आगे है समझ। अच्छा, वो समझ आ गया ना कंटेम्परेरी किस तरीके से देखते हैं? यस सर, यस। ओके ओके, अब देखते हैं। सर वैसे फॉल्ट में नहीं जाएगा कि अगर वो देखें वो कह रहे हैं कि अगर डोमिनेंट सोसाइटी है वो टैक्स नहीं दे रही है, तो फिर हम वो क्या कह रहे हैं कि हम लोन लेते हैं और क्या कहते हैं सिस्टम को चलाते हैं, तो सर ये तो कंटिन्यूस डिक्लाइन में जाएगा ना सर वो तो। अगर हाँ तो वो ये मार्क्स भी तो यही कहता था ना कि ये जो जितना भी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं करेगा। अल्टीमेटली इट हैज टू फेस इट्स क्राइसिस, और उसको क्राइसिस आएगा और ये सिस्टम डूब कर जाएगा, और फिर लेबर क्लास खड़ी हो जाएगी इस सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पे, फिर वो क्लास वाइज स्टेट। ये तो प्रोफेसी कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कर दी थी कि ये जो सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कंट्राडिक्शन का है, ये चल ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों? ओके ठीक है सर जी, चलिए आगे चलें। अब आते हैं देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है? अब यहाँ पे इसको देखते हैं, व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। याद रखिएगा, स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट ये जो कैपिटलिस्ट हैं, दे यूज बोथ काइंड ऑफ पावर, टेंजिबल पावर और इनटेंजिबल पावर। टेंजिबल पावर से क्या मुराद है? टेंजिबल पावर के आपको पता है, मैं लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, लेनिन ने जब हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात कर रहे थे, Lenin's dependency theory is heavily being influenced from the philosophy of Vladimir Lenin, and Vladimir Lenin was of the opinion के ये जो आपका ये जो कैपिटलिज्म है, it is basically the highest stage of imperialism is the highest stage of capitalism। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर if wars are happening because of the competition between two or more than two imperial states, वो ज्यादा से ज्यादा in order to have access to the new markets, in order to have more and more raw materials from the पुअर क्लासेस, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और जो जीतता है वही फिर वो रिसोर्सेज को लेके चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंपीरियलिस्ट हैं, ये जो स्टेट्स जो इनके साथ रिकंसाइल नहीं करते उनको सब्जुगेट करते हैं थ्रू पावर, थ्रू फोर्स, थ्रू वायलेंस। तो ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूज एवरी काइंड ऑफ पावर, ये हर किस्म की पावर को यूज करते हैं एक बार। तो टेंजिबल पावर के अंदर वायलेंस भी आता है, वार भी आती है, इनटेंजिबल पावर भी है। इनटेंजिबल पावर से मुराद ये क्या है? परसुएशन के जरिए, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के जरिए, डिबेट के जरिए आप ये हम कैपिटलिज्म ये एज के अंदर रखते हैं। जब भी आप टेलीविजन ओपन करते हैं, न्यूज भी अगर आपने देखनी है, तो प्रोडक्ट्स की इश्तिहारात चल रहे हैं अगेन एंड अगेन। दे आर डूइंग व्हाट? दे आर बेसिकली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू साइकोलॉजिकल, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक यू टू थिंक अबाउट देयर प्रोडक्ट फर्स्ट इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये परसुएशन के जरिए भी यूज करते हैं। अब लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट वो क्या है पावर का, ये दोनों मैंने बताया। पहले तो आपने देखना है कि देयर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ये तो बात क्लियर होगी। अब वो ये कहते हैं पावर इज समथिंग एम्बेडेड इन योर सोशल क्लासेस। पावर क्या है? पावर एम्बेडेड है आपके सोशल रिलेशंस के अंदर। पावर इज बेसिकली द डिफाइनेबल एस्पेक्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशंस। मियाँ बीवी का ताल्लुक देखें, उस्ताद टीचर का ताल्लुक देखें, मास्टर स्लेव का ताल्लुक देखें, बॉस और एम्प्लॉय का ताल्लुक देखें। ये पावर इज बेसिकली व्हाट? कैपिटलिज्म के अंदर पावर इज द डिफाइनेबल एस्पेक्ट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल रिलेशंस। ये है, मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। एक फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर फॉर इंस्टेंस ए है और एम्प्लॉय बी है। आप बड़े जो बी एम्प्लॉय है वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत जबरदस्त किस्म का साइंटिस्ट है। उसको ए ने हायर कर लिया। अब जब हायर किया तो वो कह रहे मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन आपने सुबह 8 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, और इसके दरमियान आपकी ये ड्यूटीज है, आपने ये काम करना है।
और इसके वजह से आप लोगों को मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और इसके अलावा आपको मेडिसिन भी दूंगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दूंगा, आपके बच्चों की यूटिलिटीज वगैरह भी सारी चीजें पूरी करूंगा। लेकिन आपने सुबह आना है, शाम को जाना है, ये आपके फंक्शंस है, ये करेंगे तो पे मिलेगी, ये नहीं करेंगे तो ये पे नहीं मिलेंगी। इट इज बेसिकली एन एनालॉजी ऑफ हैप्पी स्लेव। ये पावर रिलेशंस हैं। अगरचे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान ये फील नहीं हो रहा है कि ये पावर रिलेशन गोइंग ऑन है, लेकिन थर्ड पर्सन देखता है, जब वो इस चीज का एनालिसिस करता है, तो मास्टर क्या कह रहा है? मास्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट यू हैव टू बिकम व्हाट, यू हैव टू कम अर्ली एट 9, you have to work till 6 p.m. at night, and during which what you have to do, you have to perform these duties, and if you will not be performing, what would be happening? In return, you would be getting nothing from us. So third person is basically going to do what? Going to see that something power relation is going on between master and employee. तो ये एक साइकोलॉजिकल भी पावर का इन्फ्लुएंस है, और एक इम्परसेप्टिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। मेरी बात समझ आ रही है? विद इन कैपिटलिज्म के अंदर ये जो पावर रिलेशन है, ये इस किस्म का है जो इम्परसेप्टिबल है। और इम्परसेप्टिबल किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि आपको इन चीजों को देखना है कि पावर आपके सारे सोशल रिलेशंस के अंदर चल रहा है। ये तमाम सोशल रिलेशंस का डिफाइनेबल एस्पेक्ट है। ये परसुएशन के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए भी नजर आता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनविजिबल होता है, नजर नहीं आ रहा होता एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, लेकिन थर्ड पर्सन देखता है, हाँ, इट इज बेसिकली अ रिलेशन ऑफ पावर। पावर इज बीइंग एक्सर्टेड बाय बॉस ऑन द एम्प्लॉय। बच्चों, ये बात समझ आई है मेरी? तो स्लेव बड़ा हैप्पी है, उसको पता है कि वो स्लेव है, लेकिन वो हैप्पीली काम कर रहा है। बच्चों, ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, तो ये है इनका पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अच्छा, याद रखिएगा, अब हम जब ये वर्ल्ड ऑर्डर और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आप लोगों के पास लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड इंस्टीट्यूशंस क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट द वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशंस। ये थर्ड आप लोगों का जब मिड टर्म बेटा आना है, आप लोगों का जब फाइनल टर्म आना है, तो आप लोगों का एक कंपैरेटिव स्टडी भी आएगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए हाउ दे परसीव देयर रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर एंड हाउ लिबरल्स बिलीव, और तीनों के दरमियान कंपैरिजन। तो आप लोगों ने जब चीजों को बेटा प्रिपेयर करना है, तो उसका एक तो कंपैरेटिव कॉमनैलिटीज, कंट्रास्ट को मद्देनजर रखना है, और प्लस इनको अप्लाई करने की एक आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि चीजें अप्लाई भी कर पाए आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। पहले हम इंस्टीट्यूशंस को देखा करते थे, लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं नहीं, पहले आप वर्ल्ड ऑर्डर को देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा, फिर हम बताएंगे इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हाउ इंस्टीट्यूशंस दे आर वर्किंग। लिबरलिज्म और लिबरलिज्म वाले कहते थे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं नहीं, पहले वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से, जरा देखिए। वो ये कहता है व्हाट एवर द वर्ल्ड ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, हाउ द वर्ल्ड इज बीइंग अरेंज्ड। तो कैपिटलिस्ट ये कहते हैं, कैपिटलिस्ट का ये मानना है कि व्हाटएवर द वर्ल्ड ऑर्डर इज एग्जिस्टिंग, इट इज बेसिक, वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑल अबाउट द कैपिटलिस्ट सिस्टम। वर्ल्ड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? अब कैपिटलिज्म क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि world order is basically a capitalist system of interconnected set of social, economic and political relations which constitute a structure। यानी कि पूरी दुनिया के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, जो सारे जो हैं, ये आपस में मिलकर एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सो वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है वर्ल्ड ऑर्डर, क्या है? सारे के सारा कैपिटलिज्म है। और वो कहते हैं, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव कहते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म हैज एक्सपेंडेड टू बिकम अ ग्लोबल सिस्टम। मॉडर्न कैपिटलिज्म हैज एक्सपेंडेड टू बिकम अ, क्या कहते हैं, ग्लोबल सिस्टम बन गया है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम। बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में नहीं आना। अगर इसके ऊपर आप लोगों ने कोई बात मुझसे पूछनी है तो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? इट इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टिंग ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, और उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में मिलके ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट दे रहे हैं। कैपिटलिस्ट
स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जो ग्लोबल सिस्टम बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर वो मिसाल देके बताता है कैसे। मैंने आपको हाँ जी, कोई बात करना चाह रहे हैं? नहीं बेटा, अच्छा। मैंने आपको बताया था जब हम अजम्पशंस कर रहे थे, अजम्पशंस के अंदर हमने ये बात देखी थी कि अजम्पशंस के अंदर जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, दे डोंट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल। वो नेशनल और इंटरनेशनल के अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, जैसा कि लिबरल्स करते हैं, जैसा कि रियलिस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल दे आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव, दे म्यूचुअली ग्रो। और इन दोनों के पीछे कौन सी फोर्स है? कैपिटलिज्म की फोर्स है। कैपिटलिज्म अपनी मतलब के मुताबिक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा? इंस्टीट्यूशंस का, नॉर्म्स का, ट्रेडिशंस का। तो कैपिटलिस्ट पहले एक नेशनल इकोनॉमी क्रिएट करते हैं इकोनॉमी की बेसिस पे, और उसको सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं कैपिटलिज्म को, जो सपोर्ट करता है। पुलिस कैपिटलिज्म को फेवर करती है, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कैपिटलिस्ट को फेवर करते हैं, ऐसी अदालतें बनाई जाती हैं जो उनके हक में फैसला करते हैं, ऐसी आर्मी बनाई जाती है जो रिच क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर्स करती हैं। तो ये जो नेशनल है, इट इज एम्बेडेड इन इंटरनेशनल, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कुछ भी है दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं? वो ये सारे के सारे बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट? दे आर बेसिकली फेवरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रिच क्लास। इसलिए लोकल इकोनॉमी इज एम्बेडेड इन नेशनल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी भी कैपिटलिज्म है, नेशनल इकोनॉमी भी कैपिटलिज्म है, and national economy is basically embedded in international economy. So basically local into national, national into international. So basically ये जो world order है, it is all about the global capitalist system. तो ये बात समझ आई आपको। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ how it works। जैसा कि मैंने structural model of imperialism के अंदर जॉन गॉर्डन कहता था कि basically there is a core and every core is having its periphery and core, and there is a peripheral state and every peripheral state is having its own core and periphery. इन दोनों के दरमियान there is a vertical model of interaction and there is a feudal model of interaction. तो ये भी ये कहता है this international system is basically working on two axes, one is the horizontal, the other is the vertical. ये जो vertical model of interaction है, it is basically creating, जॉन गॉर्डन के मॉडल के मुताबिक, it is basically creating what? It is basically creating disparities and inequalities. ये disparities और inequalities को पैदा कर रहे हैं. How it is basically creating disparities and inequalities? Capitalist system is just favoring to the rich class, and rich class is continuously in the flux of the maximization of profit and interest. वो मसलसल profit कमाते जा रहे हैं. This is how they are getting vertical pile up of their wealth, और उनका vertical pile up of wealth होता चला जा रहा है. और but on the other side जो दूसरा केस है, उसके अंदर the gap between the riches of the poor and the rich is continuously widening. तो ये vertical pile up of जो wealth है, it is favoring. तो ये it is favoring to the rich class. इस वजह से vertical model of interaction is basically creating inequality. गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो inequality और disparity बढ़ती चली जा रही है. और ये hierarchy create करता है between the rich class and the poor class, between the rich state and the poor state, between the core and the periphery, between the haves and the have-nots. ये क्या पैदा कर रहा है? ये जो वर्टिकल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन है, ये हायरार्की पैदा कर रहा है कोर और पेरिफेरी के दरमियान, बिटवीन द पुअर एंड द रिच के दरमियान. और दूसरा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मॉडल. हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या है? हॉरिजॉन्टल मॉडल इज बेसिकली द सेम वर्क्स ऑन द सेम पैटर्न डिवाइड एंड रूल की बुनियाद के ऊपर, जो ये इनको तकसीम करके रखते हैं. और हॉरिजॉन्टल मॉडल के अंदर ये इनइक्वालिटी शो होती है विद इन द क्लासेस, स्टेट्स के दरमियान नहीं. और ये इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है कोर्स और पेरिफेरी के दरमियान, दी हैव्स और दी हैव नॉट्स के दरमियान, पेरिफेरल स्टेट्स के दरमियान, रिच क्लास, रिच और पुअर के दरमियान. मेरी बात समझ आ रही है? ये हॉरिजॉन्टल मॉडल के हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है और वर्टिकल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है. और हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या है? हॉरिजॉन्टल मॉडल इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट, ये इस इनइक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि जॉन गॉर्डन ने कहा था. मेरी बात समझ आई है कि नहीं आ रही? So world order is all about what you call it a capitalist system which is working on vertical axis and horizontal axis. Vertical axis is basically creating inequality, disparities, and horizontal model, जैसा कि जॉन गॉर्डन ने कहा था, is basically going to create
it is basically going to create prolongation या इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस इनइक्वालिटी को, और ये प्रोलॉन्ग कर रहा है और परमानेंट रह रहा है। अब बट हाँ, कोई बात कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? मेरी एक और पेरिफेरी का समझ नहीं आया बेटा। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि दुनिया के अंदर जो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती थी व्लादिमीर लेनिन ने, उसके बाद एनिबल पुंटो, सेल्सो फर्ताडो, हेनरी कार्डोसो और आंद्रे गंदर फ्रैंक, दीज वर द पीपल, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि द वर्ल्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द कैपिटलिज्म हैज बेसिकली डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू टू टियर्स, वन इज द कोर, द अदर इज द पेरिफेरी। ये लास्ट क्लास का हमने बताया था, आप नहीं थे लास्ट क्लास में? नो सर। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कोर्स को मिस कर दिया है, और तो वो सारा मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर सकता, आप किसी से ले लीजिए। थोड़ा बता दे, मैं क्लास ले दोबारा वो दूसरी रिकॉर्डिंग सुन लूंगा उसकी। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता सकता, अभी मैंने और चीजों को फिल करना है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया दी हैव्स एंड दी हैव नॉट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और द पेरिफेरल स्टेट की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो रिच क्लास दी कोर है वो परमानेंट होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। इसी के अंदर इमानुएल वारस्टीन आ गया था, उसने एक तीसरी चीज लेकर आया था, वो सेमी पेरिफेरी थी। सेमी पेरिफेरी ना सिर्फ कोर को प्रोटेक्ट कर रही है बल्कि पेरिफेरल स्टेट को भी एग्जॉस्ट होने से बचा रही है। फिर जॉन कॉटन का मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये लास्ट क्लास की बातें बेटा। आज हमने इसको पूरा करना है, क्योंकि ये हमारा जो वीक है, इस वीक के अंदर अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन हमने इन चीजों को पूरा करना। अब आगे चलते हैं इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताया, अभी तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, कोई बता पाएगा कि ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? स्टेट का इंस्टीट्यूशन, स्टेट के 3 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। बेसिकली कार्ल मार्क्स स्ट्रक्चरलिस्ट का ये कहना है, स्ट्रक्चरलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पहला कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया को एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जिसके अंदर लोकल इकोनॉमी नेशनल से, नेशनल इकोनॉमी इंटरनेशनल के साथ इंटरकनेक्टेड है, और ये जो सारी की सारी इकोनॉमी है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है। तो कैपिटलिज्म ने ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर दिया जो कैपिटलिज्म के ऊपर इंटरकनेक्टेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर बेस करता है। अब इसके अंदर ये जो कैपिटलिज्म है ये अपने आप को फेवर करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाता है, ऐसी प्रैक्टिसेस लेकर आता है, और ऐसी आइडियोलॉजीज को प्रोलॉन्ग करता है जिससे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस इंस्टीट्यूशंस किसी भी स्टेट के अंदर क्या कौन कौन से हैं? एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, और एक जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव जो है वो वर्क करती है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव इनको इम्पोज करती है, और वो जो जुडिशरी है वो अगर इसके दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो उनको ऐसे इंटरप्रेट करती है। तो इंस्टीट्यूशंस दे आर वर्किंग व्हाट, दे आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दिस वेरी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। स्ट्रक्चरलिस्ट फिर आगे कहते हैं, वो ये कहते हैं ये ऐसी प्रैक्टिसेस क्रिएट करते हैं जिससे इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। कैसी प्रैक्टिसेस क्रिएट करते हैं? प्रैक्टिसेस ये करते हैं पूरी दुनिया के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, हर बंदे की अपनी चॉइस के मुताबिक जो मर्जी करे, जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी खाए, गवर्नमेंट का इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि लिबरल्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो ये फ्री मार्केट, इस फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये WTO लेके आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए, ये गैट लेकर आए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं कि जो स्टेट है वो इकोनॉमिक फोर्सेस को ट्रिगर नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं थ्रू एजुकेशन सिस्टम, थ्रू टेलीमीडिया, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू प्रोपोगेंडा, के पूरी दुनिया के अंदर if we want to become prosperous, if we want to become advanced, if we want to go away from poverty, if we want to join the rich civilizations of the world, then we have to do what? We have to embrace capitalism. हमें कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, हमें लिबरल वैल्यूज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो इकोनॉमी कैपिटलिज्म की होगी, और पॉलिटिक्स के जितने भी फीचर्स हैं वो सारी इस पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ऐसी आइडियोलॉजीज बनाते हैं जिसके अंदर कहते हैं लिबरल वैल्यूज होनी चाहिए, लिबरल वैल्यू को फिर अप्लाई करते हैं इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर these practices and these ideologies and these institutions, structuralists कहते हैं, they are going to continuously support, they are going to continuously support the interest of the dominating rich classes of the world, dominating social classes of the world. बच्चों मेरी बात समझ आई है? अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, दुरे कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ पूछो। यस
सर मुझे ये बताएं कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का लाइक डिवीजन है और ये कॉन्सेप्ट है, ये भी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, बिकॉज पावर एक्यूमुलेशन रिसोर्सेज कम्युनिटी के ऊपर है और एलीट कम्युनिटी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसके ऊपर है। आपने तो लास्ट क्या क्लास, बेटा लास्ट क्लास ली थी तो यस सर, बीच में ली थी। अच्छा बच्चे, मैंने उसमें आप जब आप स्ट्रक्चरलिज्म को हम डिस्कस कर रहे थे ना, वेरिएशंस को, तो वेरिएशंस के अंदर हमने ये चीजें वहां पर डिवाइड की थी कि अगर डिपेंडेंसी स्कूल के तहत देखें तो द कैपिटलिज्म हैज डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू द कोर एंड पेरिफेरी। द कोर इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द नॉर्थ and the periphery is basically reflecting the south, ठीक है। the core periphery according to the dependency theory हम इसको explain कर लेते हैं। इमानुअल वालरस्टीन की जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी उसके अंदर एक सेमी पेरिफेरी थी। सेमी पेरिफेरी के अंदर वो ये कहता था कि दुनिया के अंदर, कार्ल मार्क्स तो ये कहता है कि ये सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अल्टीमेटली वुड बी गेटिंग इट्स डूम, लेकिन डूम नहीं हो रही, तो ये क्यों सर्वाइव कर रहा है। तो इसको आंसर दिया था इमानुअल वालरस्टीन एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन के ये जो इसके अंदर एक तीसरा सेक्शन भी है जो ना सिर्फ कोर को प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि ये पेरिफेरी को भी एग्जॉस्ट होने से बचा रहा है, दैट इज सेमी पेरिफेरी। और सेमी पेरिफेरी के अंदर जापान, सिंगापुर, कोरिया और इस तरह के और आसियान का ममालिक को बताया विच आर दे आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो ये उस तरीके से ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ डिपेंडेंसी स्कूल के मुताबिक और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा? ओके सर, थैंक यू। और कोई बात पूछना चाह रहे हो? सर अभी नहीं। अच्छा ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गाइस, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा इनइक्वालिटी एंड जस्टिस का है। इनइक्वालिटी एंड जस्टिस कैसे क्रिएट होता है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं व्हाट एवर द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी इज बेसिकली द एंड्यूरिंग फीचर ऑफ दिस होल सिस्टम। कैपिटलिज्म, पूरी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो सारे के सारे इट इज बेसिकली हैविंग सम इंटरनल कंट्राडिक्शंस। इट इज बेस्ड ऑन अनजस्ट वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन ये जो डिस्पैरिटीज, इट इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पैरिटी फ्रॉम दिस सिस्टम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इक्वालिटी फ्रॉम दिस सिस्टम। तो ये दिस वेरी सिस्टम इज अनजस्ट। तो एंड ये जो अनजस्ट सिस्टम है ये इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट करता है। विद इन सोसाइटी अगर देखें तो सोसाइटी के अंदर देयर इज अ रिच क्लास, देयर इज अ पुअर क्लास। तो इनइक्वालिटी किस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही है? इसी बैड इकोनॉमिक सिस्टम से पैदा हो रही है ना। कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं आ सकता जो सोसाइटी के अंदर से इनइक्वालिटीज को खत्म कर दे। तो ये सिस्टम जो कैपिटलिज्म का है ये दी हैव नॉट्स, द कोर एंड पेरिफेरी के रिलेशंस को बयान करता है। तो इनइक्वालिटी ये बेसिकली ये जो पूरा के पूरा जो सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, इनजस्टिस। ठीक है, लेकिन वो ये बात कर रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं। कैपिटलिस्ट की जो थ्योरी है लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। लिबरल मॉडर्नाइजेशन ये कहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी बिकमिंग लाइक अस, आप हमारे जैसे हो जाओगे, आप हमारे सिस्टम को एम्ब्रेस करोगे। मैंने आपको बताया था इसके अंदर तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी का जो लैटिन अमेरिकन स्कूल है, इन माय लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, उनका ये मानना है ये नहीं, ऐसा नहीं है। The countries which were willing to embrace capitalism, जो कैपिटलिज्म को embrace करना चाहते थे, what they after embracing the capitalism को अपनाने के बाद what they have seen कि their whole system is getting collapsed। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि this capitalist system is cannot favor the have nots, ये the have nots का फेवर नहीं कर सकते। the have उसी वक्त प्रोग्रेस कर सकते हैं जब इस सिस्टम को एम्ब्रेस नहीं करेंगे। और ये जो सिस्टम है इट इज जस्ट टू फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द हैव्स। ये सर्टेन सोशल क्लासेस हैं दुनिया की, जो रिच स्टेट्स हैं उन्हीं को फेवर कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि इस वजह से दुनिया के अंदर इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। और जब उन्होंने ऑप्ट आउट सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की तो उसने भी इसको यानी ऑप्ट आउट सिस्टम जब यानी कि व्हेन दे वर विलिंग टू अडॉप्ट दिस सिस्टम, तो जब उन्होंने इस सिस्टम को भी एम्ब्रेस करने की कोशिश की तो क्या हुआ, तब भी उनको डीजेनरेशन का फेस करना पड़ा, क्राइसिस फेस करना पड़ा। तो ये जो कैपिटलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं सर्टेन सोशल क्लासेस को फेवर कर सकते हैं। ये बेचारे दी हैव नॉट्स, अगर है दी हैव नॉट्स इनके प्रोपेगेंडा से इन्फ्लुएंस हो के इफ दे आर विलिंग टू बिकम लाइक देम, अगर वो उनकी तरह का बनना चाहते हैं तो दे कैन नॉट बिकम, वो उनकी तरह के रिच क्लास की तरह नहीं बन सकते। इनइक्वालिटी, तो बेसिकली जो इनइक्वालिटी है वो एंड्यूरिंग फीचर है सिस्टम की, और ये सोसाइटी को दी हैव नॉट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और फिर ये लिबरल मॉडर्नाइजेशन को स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया,
और ये दी हैव नॉट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और अगर दी हैव नॉट्स बेचारे दे गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ देयर प्रोपेगेंडा एंड दे ट्राई टू एम्ब्रेस इट, व्हाट दे सी दैट टोटली ऑपोजिट रिजल्ट्स, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लाइक रिच क्लास, वो लाइक रिच क्लास बनने के बजाय क्या हो रहे हैं, दे आर फर्दर गेटिंग डिजेनरेटेड, दे आर फर्दर गोइंग टू फेस क्राइसिस, वो क्राइसिस को फेस करते हैं। तो अब जस्टिस कैसे होगा? ये पूरे का पूरा सिस्टम इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज। तो जस्टिस कैसे होगा? इसको आंसर करने के लिए ये जो वर्ड सिस्टम थ्योरी विच आई मेड यू पीपल लर्न इन माय लास्ट क्लास, उनका ये कहना था कि ये कैसे होगा, दुनिया के अंदर जस्टिस कैसे क्रिएट हो सकता है। तो दे वर ऑफ द ओपिनियन के व्हाटएवर द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया इट इज बेस्ड ऑन लेओ, LIEO, लेओ, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाटएवर द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, स्ट्रक्चरलिस्ट, ये जो मामाल वालस्टीन और उसके लाइक माइंडेड पीपल का कहना था कि व्हाटएवर द सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इट इज बेस्ड ऑन लिबरल वैल्यूज, एंड लिबरल वैल्यूज के अंदर लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। एंड दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट liberal international economic order must be replaced with the neo, NIEO, neo international economic order। liberal exploitation का सिस्टम है, disparities का सिस्टम है, inequalities का सिस्टम है, इसको चेंज करके they were of the opinion if we are willing to create justice in the system then leo must be replaced with neo, and neo के अंदर the very first feature must be कि fair prices, fair value must be given to the services and the labor of the laborer की वैल्यू की, लेबरर की जो लेबर है उसकी फेयर प्राइस, उसकी फेयर पे दी जाए, एंड द फेयर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हैव नॉट्स, जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको डीवैल्यू करने के बजाय उनकी फेयर प्राइसेस दी जाएं। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे एक बात बतानी है, जैसा कि अभी मुझसे जैनब ने भी पूछा था कि सर ये कौन सा सिस्टम बताते हैं। सबसे बड़ा कार्ल मार्क्स के ऊपर भी यही क्रिटिसिज्म था, स्ट्रक्चरलिस्ट के ऊपर भी यही क्रिटिसिज्म है कि व्हाटएवर द अप्रोच इज बेसिकली बीइंग अडॉप्टेड बाय देम, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन a problem highlighting approach. Their approach is just a problem highlighting. It is, they are not going to give, neither Karl Marx nor the structuralist man, they are not going to give you a concrete framework by which inequality could be removed, equality would be established, and justice would be provided. Structuralist approach is just a problem highlighting. So was the case with Karl Marx. Karl Marx के साथ भी यही ओपिनियन था और ये भी यही कहते हैं। अब इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट न्यो मस्ट बी क्रिएटेड, और भाई न्यो कैसे क्रिएट किया जाए? तो न्यो को वो ये कहते हैं ये न्यो भी क्रिएट नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि दुनिया के अंदर जो इतने पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पुअर क्लास। वो अगर इतने अच्छे होते तो दुनिया में पॉवर्टी ना रहने देते। तो फिर वो कहते हैं एक ही हल रह गया, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, द लेबर क्लास ऑफ द होल वर्ल्ड दे विल बी गेटिंग यूनाइटेड, वो यूनाइट हो जाएंगे एंड दे विल बी ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ स्लेवरी अराउंड देयर नेक, वो अपनी इस स्लेवरी को तोड़ेंगे थ्रू रेवोल्यूशन, एंड देन दे विल बी क्रिएटिंग अ क्लासलेस, स्टेटलेस एंड रिलीजनलेस सोसाइटी। 300-350 साल गुजर गए जब से कार्ल मार्क्स किया है, लेकिन दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस नहीं आए, दुनिया के अंदर क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट नहीं हो सकी। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक देयर forefathers, they are just problem highlighting, they are not problem solving. So justice according to them could only be created according to the prophecy of Karl Marx. Guys, ये बात समझ आई है मेरी? कोई बात पूछना चाह रहे हैं? सर जी सर, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि लेबर की वेजेस देनी चाहिए, हमें उनकी जो राइट्स हैं वो देने चाहिए, जैसे सर ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो शुरू से चलता आ रहा है, चलता जाएगा ये तो। लेकिन बेटा लेबर को अगर उसकी लेबर के मुताबिक अगर उसको प्राइस दी जाती, उसको वैल्यू किया जाता, तो दुनिया के अंदर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ही ना पाती। मेरी बात लेकिन क्लासलेस सोसाइटी तो सर नहीं है ना, ये तो इम्पॉसिबल काम है ना। देखिए वो कह रहे क्लासलेस रिलीजनलेस सोसाइटी है, तो सर जितने डायनामिक्स हैं ये तो सर एक इम्पॉसिबल बात नहीं है। हाँ, आप अच्छी बात कहते हैं, ये भी इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो ये कहते हैं कि टाइम आएगा। अब जैसा कि सोवियत यूनियन ने कोशिश की आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन
उन्होंने कोशिश की थी क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाने की, लेकिन whatever the philosophy was being adopted by Lenin and Stalin, जो भी थी वो डेविएशन थी फ्रॉम द एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, इसी वजह से दे गॉट देयर डूम, इसी वजह से वो फारिग हो गया। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ये कह रहा है वी आर स्टिल द फ्लैग बैरियर ऑफ कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड, और कम्युनिज्म की पहली स्टेज ये है कि टू क्रिएट अ स्टेट, हमने स्टेट क्रिएट कर ली, हमने आजादी ले ली कैपिटलिज्म से। अब इस स्टेट के अंदर वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? इट इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट स्टेज। इस ये इंटरमीडिएट एक मिडिल स्टेज है। इस मिडिल स्टेज के अंदर दे विल बी डूइंग व्हाट? दे विल बी प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे, एंड दे विल बी ट्राइंग टू एग्जिस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और पीसफुल कोएग्जिस्ट वो कैपिटलिज्म के साथ भी तावन करेंगे, एंड दे विल बी कंसोलिडेटिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। तो चाइना क्या कह रहा है कि जो गलतियां कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के मुताबिक इन्होंने की वो हम नहीं कर रहे, और हम अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, हम मिडिल स्टेज में। और फिर जब चाइना दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा, देन दे वुड बी प्रोपोगेटिंग, वो फिर प्रोपोगेट करेंगे और दुनिया को मजबूर करेंगे, जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को 3 ऑप्शंस लेकर आया था, डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस कर लो, या हमें टैक्स दो, या हमारे साथ फाइट करो। पूरी दुनिया ने डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस कर लिया, इस वजह से पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी नेपोलियन बोनापार्ट के रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये पूरी दुनिया में चली। तो फिर चाइना ये कहता है कि जब हम दुनिया का सुपर पावर बन जाएंगे तो फिर हम दुनिया को कैपिटलिज्म की तरफ कैपिटलिज्म से दूर कम्युनिज्म की तरफ लेके जाएंगे, और फिर हम एक ऐसी सोसाइटी दुनिया में क्रिएट करेंगे जो क्लासलेस, स्टेटलेस होगी और रिलीजनलेस होगी। तो चाइना अभी भी रिलीजनलेस है, ये याद रखिएगा, ठीक है सर। ये इकोनॉमिक वैल्यूज में लिबरल वैल्यूज को क्यों एम्ब्रेस करते हैं ये? यार मैंने आपको बताइए यार, अब ये लिबरलिज्म के अंदर ये हमने बात किया था कि उसमें एक पॉलिटिकल वर्जन है और एक इकोनॉमिक वर्जन है। अब इतनी पुरानी बातें तो ना पूछो। और लिबरलिज्म ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस सवाल का जवाब उस पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था और किताब के अंदर बड़ा आसानी अच्छी तरीके से लिखा हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे अलग में पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा, ओके। अच्छा जी, अब अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इस चीज को बेटा आप लोगों ने समझना है। आज सिर्फ 80, 81, 82 या 70, 71, 72 में से जस्ट 49 स्टूडेंट्स आ गए। तो कोई बात नहीं, इन लोगों को पता चलेगा जब क्लास शॉर्ट अटेंडेंस की तरफ जाएंगे आप लोग। ओके बेटा, अब अगली बात करते हैं जी। सर आपके पीछे किस चीज का शोर है? कुल्फी वाला है? सॉरी सर, कुल्फी वाले की आवाज आ रही है। नहीं, ये मेरा जो मेरा क्लॉक है ना, उसने 12 बजाए हैं, तो ये उसका सायरन था, उसका सायरन था। काफी देर से आ रही है। सॉरी, काफी देर से आ रही है। नहीं बेटा, अभी तो कोई भी नहीं है। ये उसका सायरन हर मैंने 15-15 मिनट में टाइम सेट किया हुआ है, इसका टेंशन ना लिया करो मेरा पुत्र। आगे चलते हैं बेटा, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट गाइस, याद रखिएगा। neither Karl Marx nor initial structuralists they ever focus on the concept of identity and community। आइडेंटिटी भी कोई चीज होती है, कम्युनिटी भी कोई चीज होती है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक आइडेंटिटी दुनिया में एक ही है, या तो तुम अमीर हो या गरीब हो। सो वाज द केस विद स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक भी एक ही आइडेंटिटी है। ये जो आप कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी बलोची हैं, हम जनाब मुस्लिम हैं, ज्यूज हैं, क्रिश्चियन हैं, हम जनाब गोरे हैं, काले हैं, हम जनाब लैंग्वेज की बुनियाद पे, रेस की बुनियाद पे अलग-अलग आइडेंटिटीज रखते हैं। ये इन कॉन्सेप्ट्स को ना तो कार्ल मार्क्स ने एक्नॉलेज किया, ना स्ट्रक्चरलिस्ट ने एक्नॉलेज किया। सो मच सो कार्ल मार्क्स और स्ट्रक्चरलिस्ट वो ये कहते थे, ये जो कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन की बुनियाद पे यू आर गोइंग टू क्रिएट योर आइडेंटिटी, इट इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है, की एग्जांपल है। भाई दुनिया में दो ही किस्म की लोग हैं, या तो वो अमीर है या गरीब है, या तुम अमीर हो या गरीब हो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। या तुम पुअर क्लास हो या तुम रिच क्लास हो, और कोई आइडेंटिटी नहीं है। और अगर तुम समझती हो कि कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड की बुनियाद के ऊपर यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, इट इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये जनाब इट इज बेसिकली अ डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल प्रॉब्लम्स। अगर आप लोग कहते हैं हम कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड की बुनियाद पे वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आवर आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, ये बकवास है। ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है।
ना रिलीजन है, ना कल्चर है, ना एथनिसिटी है। ये बिल्कुल ये डिस्ट्रक्शन है। ये कैपिटलिज्म ने आपको डिवाइड किया है इन बुनियाद की बुनियादों के ऊपर कि तुम अमीर गरीब का फर्क खत्म करके तुमको फ्रोई मामलात में तुम आपको मुख्तलिफ चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया कि आप डिवाइड हो जाओ कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, गोले कारे के ऊपर। ऐसी कोई चीज नहीं है, तो एक ही आइडेंटिटी है। तो ये गलत है, ये डिस्ट्रक्शन है फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये कैपिटलिज्म ने आपको डिवाइड किया है। और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है जो रिच क्लास है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, जुबान के नाम पे, रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर लड़ा रही है पूरी दुनिया में। तो कार्ल मार्क्स का यही कहना था, भाई ये जो तुम्हें इस तरह की आइडेंटिटीज में आते हो ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरलिस्ट भी यही कहते थे। लेकिन 1960s के बाद क्या हुआ, 1960s के बाद कि दुनिया के अंदर आपको पता है जब यूनाइटेड नेशन बनी तो दुनिया में तकरीबन कोई 51 कंट्रीज थे, 51 कंट्रीज थे। और 1960s तक ऑन द बेसिस ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दुनिया में 99 कंट्रीज थे। फ्रॉम 1960 से लेकर 1993 तक दुनिया के अंदर या 94 तक 191 या 92 कंट्रीज थे। तो ये क्या हो रहा था, दुनिया के अंदर नए ममालिक बन रहे थे। And most of the movements which were going on all over the world, they were Marxist, जैसा कि चे गुवेरा था, जैसा कि फाइदल कास्त्रो था। इस तरह के जो लोग थे ये पूरी दुनिया के हीरोज थे। कर्नल कजाफी था, और हमारे मुल्क के अंदर जो जुल्फकार अली भुट्टो था वो भी सोशलिस्ट इन अप्रोच था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी को हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट इन अप्रोच। तो पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ कि जो फ्रीडम, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद के ऊपर जो मूवमेंट चल रही थी, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स जो थी वो क्या थी, दे वर मार्क्सिस्ट, प्रो लेनिन, एंड दे वर लेफ्ट लीनिंग। वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थी और कम्युनिज्म के हक में थी। और लेकिन हो क्या रहा था दुनिया के अंदर, चाइना एंड सोवियत यूनियन एट दैट टाइम they were supporting these movements, इन मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे वो पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फिलोसफिकली वो जो मार्क्सिज्म था और स्ट्रक्चरलिज्म जो था, they were not acknowledging these disparities, वो इन disparities को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। तो फिर हुआ ये, इमानुअल वॉलस्टीन ने कहा कि भाई ये भी एक आइडेंटिटी है जो इस सिस्टम के खिलाफ है, इस सिस्टम को टॉपल करना चाहती है। तो उसने फिर इन लोगों को करना, उसने कहा कि स्टेट्स दे आर गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द वर्ल्ड में। जैसा मैंने बताया जब यूनाइटेड नेशन बनी 51 कंट्रीज थे पूरी दुनिया के अंदर, और उसके बाद 1960s में 99 कंट्रीज आ गए 1960 में, और 1990 तक दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 190 के करीब कंट्रीज थे। तो क्या हो रहा था, पूरी दुनिया के अंदर नई नई स्टेट्स बन रही थी, और किस बुनियाद के ऊपर बन रही थी, they were on the basis of nationality, on the basis of culture, color, caste, creed, language and religion. And most of the movements, they were being supported by Soviet Unions, China. So here the need was first time faced कि हमें ऐसी कोई definition, ये जो philosophical gap है on the basis of identity and community, it has to be removed. इसके फिलोसफिकल गैप को खत्म किया जाना चाहिए, और फिलॉसफी के अंदर भी इस आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज these sort of identities, Immanuel Wallerstein came up with the idea to give the meaning to people, and Immanuel Wallerstein was of the opinion that states they are going to be created, and states they are being shaped, उनको बनाया जा रहा है, रीशेप, नया डिजाइन किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, डीक्रिएट किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ममालिक को तोड़ा जा रहा है, इंपीरियल स्टेट्स टूट रही हैं, नए मैप्स बन रहे हैं, शेप किए जा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं, द पीपल, दे आर गेटिंग देयर आइडेंटिटी, इससे लोगों को आइडेंटिटी बन रही है। तो ये जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट, दे आर गोइंग टू कंट्रोल द रेलेंस ऑफ स्टेट, एंड व्हेन पीपल दे स्टार्ट themselves associating with state, जब वो उनको स्टेट के साथ एसोसिएट करते हैं पीपल, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। हम पहले पाकिस्तान जब नहीं बना था दुनिया के अंदर, तो क्या था, वी वर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट,
And when Pakistan was being made, the subcontinent was divided, इसको destroy किया गया, and new identity was being created between the Hindus and Muslims. And the Muslims, they were being called Pakistani, and the Hindus, they got there in India. So people started to associate themselves with state. तो यहाँ से this is how a new identity was being created. एक नई identity create हुई, और इस identity को फिर उन्होंने nation state का नाम दिया, nation का नाम दिया. अब within state दो किस्म के लोग हैं. Some of the people, they are not willing to go with the line of state, and some of the people, they are willing to go with the line of state. Some are not willing to go with the line of state, some are willing to go with the line of state. और जो लोग, those who are not willing to go with the line of state, जो line of उसके उनको minorities का नाम दिया जा रहा है, and they are raising arms against the state, और state के खिलाफ. तो this is, और they are further divided. जो state के साथ जा रहे हैं, they got their identity, वो pro system है, और जो system के साथ नहीं जा रहे, वो they are resisting to this very system of exploitation in the shape of state. तो वो अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं. तो इस तरीके से आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आफ्टर 1960-70s ऑनवर्ड स्ट्रक्चरलिज्म के आना. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, मैं जो बात बता रहा हूं आपको समझ आ रही है? यस सर. ओके, बोलेगा ओ सुतियों को मो, ओए सुतियों को मो, और बोलोगे? यस सर, आ रही है, सारी समझ आ रही है. जबरदस्त. हम आपको अच्छा, माइक बंद किया हुआ है. ओके, दैट्स ग्रेट. अब स्ट्रक्चरलिस्ट ने प्रो सिस्टम फोर्सेस को एक्नॉलेज नहीं किया. स्ट्रक्चरलिस्ट they were of the opinion that we have to support एंटी सिस्टमिक फोर्सेस. एंटी सिस्टमिक मूवमेंट्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कल्चर की बुनियाद पे हो, चाहे कलर की बुनियाद के ऊपर हो, लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर हो, जेंडर की बुनियाद के ऊपर हो, रेसिज्म की बुनियाद के ऊपर हो, सेक्सिज्म की बुनियाद के ऊपर. जो भी फोर्स जो इस सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जाएगी, वो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए हर सूरत हर कीमत में, और उनको जैसे भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, और उनकी इस आइडेंटिटी को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. बच्चों मेरी ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इसे थोड़ा इजी करके बता देंगे ना. वो ये कह रहे हैं. अच्छा, अब वो आइडेंटिटी तो क्रिएट हो गई ना. आइडेंटिटी अब दो किस्म की है. अब जो स्टेट को सपोर्ट करते हैं और जो स्टेट के खिलाफ काम करते हैं. अब जो वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स की बुनियाद पे भी हो सकता है, वो सोशल कल्चरल राइट्स की बुनियाद के ऊपर भी हो सकता है. तो वो ये जो फोर्सेस जो सिस्टम के खिलाफ हैं, उनको जो इमानुअल वॉलस्टीन ने डिक्लेयर किया कि वो एंटी सिस्टमिक फोर्सेस हैं. अब चाहे वो कल्चर कलर कास्ट क्रीड लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर हो, रेस की बुनियाद के ऊपर हो, या सेक्सिज्म की बुनियाद के ऊपर हो, हमें इन चीजों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना, और हर मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो इस सिस्टम के खिलाफ जाना चाहते हैं. तो इस वजह से आफ्टर 1960s एंड 70s पहली दफा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आया स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, और कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आया स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान. ठीक है बेटा? अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं. ओके, अब आगे चलते हैं. जरा अगला कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का. अब कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ अभी तक आ जाना चाहिए कि ये जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर वायलेंस है. ये सिस्टम ही कोई बताएगा ये सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस करता है? ये जो कैपिटलिज्म है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस करता है, और फिर अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस में निकलती है, कैसे कोई बताएगा? अभी तक जो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान है? पुअर क्लास को रिच क्लास दबाती चली जा रही है. ठीक है? और पुअर क्लास डिस्टर्ब्ड है, वो चाहते हैं कि हमारा ये जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, हमें राइट्स मिले, हमें एक्नॉलेज मिले, हमें आइडेंटिटी मिले. तो ये सिस्टम नहीं दे रहा, और ना देने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अल्टीमेटली आपको कहाँ लेके जा रही है? आपको वायलेंस की तरफ लेके जा रही है. तो वो ये कहते हैं, स्ट्रक्चरिस्ट का ये मानना है, दिस वेरी होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज. जहां जहां पे नाइंसाफी होगी वहां से बगावत जन्म लेगी.
और जहां जहां से बगावत जन्म लेगी वहां वहां पर वायलेंस तशद्दुद होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो कैपिटलिज्म है ये इस डिवीजन को परपिचुएट करता है, प्रोलॉन्ग करता है, लंबा लेके चलता है और कॉन्फ्लिक्ट निकलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इज समथिंग एम्बेडेड इन दिस सिस्टम। कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग इनहेरेंट, वेरी नेचुरल। कॉन्फ्लिक्ट इज इन द नेचुरल सेटिंग ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की नेचुरल सेटिंग के अंदर है। द होल सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वायलेंस आता है। तो वायलेंस कैसे है? वायलेंस दो तरह से, एक तो डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस है जिसमें आप वार करते हो। अब वार कैसे कैसे होती है? व्लादिमीर लेनिन के मुताबिक इंपीरियल स्टेट आपस में लड़ती हैं इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स, इन ऑर्डर टू लूट द रिसोर्सेज ऑफ द हैव नॉट्स। तो आपस में लड़ती हैं, तो जब वो लड़ती हैं तो वार होती है पूरी दुनिया के अंदर। तो एक शिकस्त खा जाती है, दूसरी जीत जाती है, तो अल्टीमेटली रिच क्लास डोमिनेट करती है। और दूसरा इंपीरियलिज्म फाइट करते हैं, और फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कंपटीशन होता है विद इन स्टेट। और वो मिसालें देके बताते हैं कि ये जो इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया था फर्स्ट गल्फ वार के अंदर, उसको डिक्लेयर किया था कुवैत इज माय 18th प्रोविंस। तो पूरी यूनाइटेड नेशन आ गई उसको कुवैत को बचाने के लिए। अमेरिका आ गया, कहता वो क्या दे वर डाइंग इन द लव ऑफ द कुवैती पीपल? नो, जो सद्दाम हुसैन इंटरेस्ट हासिल करना चाहता था वही यूनाइटेड स्टेट्स हासिल करना चाहता था, टू हैव एन एक्सेस टू द ह्यूज अनटैप्ड रिसोर्सेज ऑफ कुवैत। तो वार कैसे हुई? बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द हैव्स। ठीक है ना? तो फिर इंडोनेशिया ने, अगर ये जो इराक के ऊपर अमेरिका ने 2003 के अंदर हमला किया, ये क्या था? ये भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ये टूरिज्म जो सोचते हैं ये सद्दाम हुसैन वाज हैविंग WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एंड द वेस्ट वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय सद्दाम हुसैन, ऐसी बातें नहीं थी। Iraq was the second largest oil exporting country at that time in the world. Oil producing countries, more specifically we talk about. And the United States of America wanted to have an access. तो उन्होंने in order to, in inverted comma में लिखो, liberate the people of Iraq from the clutches of Saddam Hussein, they invaded. ये सारे lame excuses हैं। तो वायलेंस होता है, डायरेक्ट वायलेंस होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिस्टम। और इसी तरीके से गल्फ की वार हुई, इराक के ऊपर वार हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें। फिर इनडायरेक्ट वायलेंस भी है, साइकोलॉजिकल वायलेंस है, ये सोशल वायलेंस है। इफ यू आर एंजॉयिंग, फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर एंजॉयिंग योर गुड सोशल स्टेटस, मीन्स यू गॉट वेल्थ, यू गॉट गुड रिप्यूट, आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत के साथ शोहरत है, आप सोसाइटी के अंदर रिप्यूट को एंजॉय करते हो, and what happens very next day that you are being deprived of this your social status. आपको कोई मुलाजमत से बर्खास्त कर देता है। अगर एक मुलाजमत से आप 10 लाख कमा रहे थे, इसकी वजह से आपका सोशल स्टेटस था, आपके पास पैसा था, आप लोगों की मदद करते थे, you got your reputation, and the next day somebody is going to remove you from your post. तो क्या होगा? तो ये एक साइकोलॉजिकल है, एक, और ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ अटैच करता है। ये इनडायरेक्ट स्ट्रक्चरल वायलेंस है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं वायलेंस दो किस्म का है जो ये सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? एक डायरेक्ट वायलेंस है और एक इनडायरेक्ट वायलेंस है। और इनडायरेक्ट वायलेंस चल रहा है जब जॉन गॉल्टन ने इसको बहुत अच्छी तरीके के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायरेक्ट वायलेंस में डायरेक्ट वायलेंस होता है, वॉर करते हैं, और इनडायरेक्ट वायलेंस में साइकोलॉजिकल पेन दी जाती है, आपको टॉर्मेंट किया जाता है, आपको डिप्राइव किया जाता है योर सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटीज। दिस इज हाउ यू आर बीइंग इन। तो ये जो दी हैव्स हैं, जो रिच क्लास है, वो क्या कर रही है? वो रेस्ट ऑफ द 90% जो पॉपुलेशन है उसको टॉर्मेंट कर रही है साइकोलॉजिकली और फिजिकली। दिस इज हाउ दिस वेरी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन। तो पीस दुनिया के अंदर, वो पीस एंड सिक्योरिटी की जब वो बात करते हैं, तो पीस दुनिया के अंदर कैसे होगा? व्हेन दिस वेरी सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वुड बी replaced with the system of parity। तो ये कब होगा? जो कार्ल मार्क्स कहता है। तो बेटा आज हमने इसको पूरा किया है, हमने इसको देखा है, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया।
अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं इसमें कि आप लोगों ने जो मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट देनी है, असाइनमेंट पे हमने इन्होंने बताया कि